Hi everyone, welcome back to another Redis video. I hope you all are doing fine. आज हम बात करने वाले हैं Redis clustering के बारे में. So I hope आपने Redis replication की वीडियो पहले देखी हुई हो. If you haven't watched Redis replication video as of right now, so I would highly suggest you to go back and first watch that video. It's a bit longer video, but it will definitely help you understand कि Redis clusters कैसे काम करते हैं internally. अदरवाइज सिर्फ रेडिस क्लस्टरिंग की वीडियो देखोगे तो सिर्फ वो हाफ बेक नॉलेज आपको मिलेगी. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो भी जाके एक बार चेकआउट करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रेडिस क्लस्टरिंग. व्हाट रेडिस क्लस्टरिंग इज अबाउट? सो रेडिस क्लस्टरिंग इज जस्ट स्केलिंग हॉरिजॉन्टली विथ रेडिस. नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी. Let's see at what all things we are going to look at today. So the first thing is the basics and types of scaling. This is not going to be in particular about Redis. This is going to be in general that what are the scaling types and what are the advantages, disadvantages of both. Second is what is Redis clustering. Third, the Redis port configuration. Fourth is data sharding in clusters. This is very important and we'll spend quite some time here. Then on fifth we have replication in Redis clusters, and then sixth, consistency in Redis clusters. So these are all the topics that we'll be talking about. If you are a very beginner, I would recommend you to watch the entire video from start to finish. But if you know the basic of scaling, if you know what is Redis, if you know the basics of clustering, then you can skip to points 3 to 6, because these are the main ones that talk about the actual clustering, and in the 1 and 2 we'll just give a brief introduction about what scaling is and what are the different types of scaling and etc. So the last video was around 40 minutes, so we'll try to complete this in a time before that. I am assuming this video will be 15 to 20 minutes, but देखते हैं कितनी जाती है वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्केलिंग. सो इमेजिन कि आपके पास एक इंस्टेंस है जहाँ पे आपकी सर्विस चल रही है या फिर आपका डेटाबेस चल रहा है. ओके, नाउ आपके पास ज़्यादा यूजर्स आते जा रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? यू कैन नॉट लेट दैट सिंगल इंस्टेंस टेक ऑल द लोड. यूजर्स बॉटलनेक हो जाएंगे, यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस हमें स्केल करने पड़ते हैं अपने सिस्टम्स को. नाउ जब हम स्केल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं स्केल करने के. ओके, एक होता है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. नाउ व्हाट आर दीज? These are just two different types of scaling methods. So let's look at the first scaling method, which is vertical scaling. So now imagine करो कि आपके पास जो है एक Redis instance हो गई, या फिर आपके पास कोई भी सर्वर हो गया, एंड उसकी RAM जो है वो आपके पास करेंटली है 2 GB हो गई. Now if you want to scale this instance vertically, that means increasing this RAM to 2 to 8 GB or maybe 4 GB or maybe 16 GB. Okay, so this is how we vertically scale. So we only have a single instance, single machine, but we make that machine powerful. So we have vertically scaled that. We have increased the CPU, we have increased the RAM, we have increased GPU, we have increased storage. So these are the types of things that are included in vertical scaling. ये चीज़ सर्विसेज में भी होती है, डेटाबेसेस में भी होती है, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास रेडिस में भी होती है. नाउ हम जो है वर्टिकल स्केलिंग में रैम इंक्रीज करते जाते हैं. 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ओके, नाउ इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ प्रॉपर्टीज. ये जो है बहुत जल्दी कॉस्टली बन जाता है. ओके, बिकॉज 2 GB रैम इज रिलेटिवली चीपर देन 4 GB रैम. 8 GB रैम इज चीपर देन 8 GB RAM is more expensive than 4 GB RAM. 4 GB RAM is more expensive than 2 GB RAM, and so on and so on. Now, up till 256 GB or something, up to 256 GB, these costs go up linearly. Okay, but when we go beyond 256, let's say from 256 to 5112 or 5112 to 1024,
So then the cost is not linearly increasing. Now it takes sort of an exponential kind of increase, not exactly exponential, but the gram is quite costly when we go into these segments, like more than 256 GB. So it becomes a lot costly. Now second thing is, it is very dangerous, because now all your entire data, let's say 256 GB of data is stored on a single instance. Now that instance can crash anytime. All the load is coming on that instance. That node is reading, that node is writing, that node is doing all the work. Now it is dangerous for your data because it can crash anytime. Okay, now let's see the other type of scaling, which is horizontal scaling. Now in horizontal scaling, instead of increasing the capacity of your earlier instance or your single instance, we split the data into multiple instances, and we say that instead of having one servers, I am going to have X servers, and I'm going to split my data between all of these servers in some way. ठीक है, इन वॉट वे दैट इज नॉट ऑफ द कंसर्न राइट नाउ, लेकिन हम उसको जो है किसी ना किसी तरह से स्प्लिट करके रख देंगे. ओके, नाउ इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, बिकॉज यहाँ पे जो है हम जितने सर्वर्स चाहें उतने डाल सकते हैं. लेट से कल को हमारा सर्वर 4 खराब हो गया, कोई बात नहीं, सर्वर 4 को रिप्लेस कर दो दूसरे सर्वर से, बाकी को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. अगर हमारा सर्वर 1 चला गया सिर्फ, तो हमारा डेटा लॉस जो है तो सर्वर 1 का जाएगा, ये बाकी सारे सर्वर्स जो है इंटैक्ट रहेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. नाउ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस बेसिस पे करी जाती है? ओके, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जैसे हमने बताया कि हम जो है और सर्वर्स ऐड करते जाते हैं. सो ये करी जाती है शार्डिंग के बेसिस पे. व्हाट इज शार्डिंग? शार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल पार्टीशंस. सो हमारे पास ये डेटा है, ये पूरा बंच ऑफ डेटा है. लेट से कि हमारे पास 50 GB ऑफ डेटा है, तो 10 GB हमने यहाँ रख दिया, 10 GB 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 यहाँ रख दिया. टोटल हो गया हमारे पास 50 GB. तो ये जो है हमने डेटा को शार्ड किया है. दिस इज द शार्डिंग ऑफ डेटा. ओके, नाउ as I said that this horizontal scaling is cheaper, okay, compared to the vertical scaling when we go beyond 256 GB. Now let's see कि if we have these here, तो 256, 256, 256, 256, 256, that's what 1 TB of data. Yeah, not 1 TB, 750 around GB of data, 750, 800 GB of data. Now this is much cheaper than compared to a single instance of 750 or 800 GB of RAM, and it is more safe and it is more stable, since our entire instance is not prone to get destroyed in a single like in single shot, because we have split the data. So let's just do some back of the envelope calculation and see what is the cost impact when we are looking at vertical scaling or horizontal scaling. So let's say that we have an instance of 64 GB RAM, and our goal is to have 1 terabyte of RAM. Okay, that is 1024 GB. So if we have 64 GB of RAM, if we want to have 1024 GB, then we'll need 16 instances of 64 GB of RAM. Now that will give us $8.5K per month will be the monthly bill. Now let's say that we go ahead and since we require 1 terabyte of RAM, why don't we just order an instance of system of 1 terabyte of RAM and go ahead with it, because the same instance will cost us $10K. Now it does not seem much of a difference, since if you are storing 1 terabyte of data, what is $2,000? Okay, so let's go ahead with the calculation. Now, since as you have seen in the replication video, just having a single instance is not good. We need to replicate the data in order to have fault tolerance and fail safe. So 8.5K for one instance into 2 per month gives us 17,000
per month. This is for 64 GB of 16 instances. Now that will give us total of 32 instances. Now this will cost just $200,000 and $204,000 for the entire year. The same, if we do the same calculation for 1 TB of RAM, then $10,000 for 1 month into 2 instances, because we want to replicate everything. Now this is per month, it will be 20,000 per month, and if we look at the yearly expense, that's $240,000. Now if I subtract 240 minus 204, that gives us 236 or something. Yeah, 236. Right, so you can run almost for 2 months more this configuration for 2 more months, just for the cost of 1 TB instance. So this is how, if we go for very big architecture, we can see that horizontal scaling is much more cheaper than vertical scaling. And again, it is quite safe, since we have partitioned the data into multiple instances, and if a single instance fail, we are safe that the most of our data is safe. Not all the data is lost in the worst case scenario. Okay, let's move on. So this was the first part of the video where we talked about just scaling. Now scaling is not particularly limited to Redis. It is just in general how backend system grow. Okay, so now let's understand Redis clustering. So what is Redis clustering, and why did we talk about scaling in the Redis clustering video? So Redis clustering is the Redis answer to horizontal scaling. Okay, so Redis is an in-memory database. Now it is volatile, and since it's in memory, how do we distribute the data into multiple instances? Because if it was just a hard disk, if it was persistent storage, then we can think of lot of ways on how RDS do it, and how other databases do it. But for Redis, how do we do it? So Redis came up with Redis clustering here. Okay, so and what happens, Redis clustering also, we go for horizontal scaling, not vertical scaling, because vertical scaling is pretty straightforward. You take an instance, you vertically scale it, you increase the RAM, you increase the CPU, and you are good to go. But for horizontal scaling, this is where the real complexity lies in. Okay, so so Redis clustering is a way to automatically shard data across multiple Redis instances. So अगर आपके पास डेटा है तो आपको multiple instances में उसको कैसे shard करना है, and कैसे these all will work together for the client as a single instance. So this is what Redis clustering is. Now it helps system up if even one node is down. तो जैसे हमने बात करी कि अगर एक भी हमारी नोड डाउन हो जाए तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, रेडिस क्लस्टर जो है उस चीज को संभाल सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली Redis clustering means in the very fundamental way, that Redis cluster will split your data into multiple nodes. Your data will be saved in multiple instances, and even if one node is down, let's say this got down, the client can still get all of the data from node 2 and node 3. Not all of the data, we don't have replication. If node 1 is down, then it is down, but other two will keep on working. Our whole system won't go down. Okay, yeah, let's move on to next topic, that is cluster port configuration. Now अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि Redis clustering होती क्या है. नाउ वी आर गोइंग इनटू डिटेल कि Redis clustering काम कैसे करती है, बिकॉज अब बहुत सारे नोड्स हैं. ठीक है, तो जब भी आपने Redis रन किया है तो आप Redis सर्वर से पोर्ट 6379 पोर्ट पे कम्युनिकेट करते हो. सो ये जो पोर्ट है ये कम्युनिकेट करता है क्लाइंट Redis सर्वर से. तो Redis क्लाइंट जो है, Redis सर्वर जो है, इन दोनों का कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर पोर्ट पे होता है. बट हाउ वुड नोड 1 नो एंड नोड 2 नो दैट दे आर इंटरकनेक्टेड, और नोड 2 एंड नोड 3 वुड नो कि दैट दे आर इंटरकनेक्टेड.
Now this is where cluster port configuration comes in. Cluster port configuration gives the cluster nodes ability to know about each other. Okay, so इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास एक क्लाइंट है एंड क्लाइंट के जो है हमारे पास ये 3 नोड्स हैं. नाउ ये 3 नोड जो हैं ये तीनों के तीनों तो 6379 से कनेक्टेड रहेंगे रेडिस क्लाइंट के थ्रू. बट अब ये होस्ट हो सकता है कि अलग अलग हो. ये होस्ट 1 पोर्ट 6379, होस्ट 2 पोर्ट 6379 एंड ये हो सकता है होस्ट 3 पोर्ट 6379, है ना. सो बट ये लोग एक आपस में एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? इनको कैसे मालूम कि ये मेरा जो नेबरिंग नोड है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? तो इसमें होता है ये क्लस्टर बस पोर्ट. ओके, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली दो रेडिस क्लस्टर जो है 2 पोर्ट्स को एक्सपोज करता है रेडिस इंस्टेंस से. तो जैसे ये हो गया हमारा नोड. ना इसमें 2 पोर्ट्स रहेंगे, एक तो 6379 रहेगा एंड एक दूसरा पोर्ट रहेगा विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी टीसीपी पोर्ट जो यूज रहेगा नेबरिंग नोड से बात करने के लिए. ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर बस पोर्ट. नाउ द क्लाइंट्स जो हैं वो तो डिफॉल्ट पोर्ट के साथ बात करते हैं जो हमारा रहता है होस्ट का IPN 6379 एंड ये जो डिफॉल्ट क्लस्टर पोर्ट है, जो क्लस्टर बस पोर्ट है, ये जो भी हमारा डिफॉल्ट पोर्ट दैट इज 6379 रहता है प्लस 10,000 तो इट बिकम्स 16379. नाउ 16379 बाय डिफॉल्ट जो है क्लस्टर बस पोर्ट रहता है जिसके थ्रू नोड 1 एंड नोड 2 एंड नोड 3 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि दे कैन चेक द हार्ट बीट्स ऑफ ईच अदर कि ये नोड अभी एक्टिव है या नहीं है, या फिर ये डाई हो चुका है, या फिर बाकी अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस रही तो उन सब चीज़ों के बारे में इट कैन नो कि क्लस्टर का नोड टाइम आउट क्या है, अभी मेरे पास कितने एक्चुअली में क्लस्टर्स हैं, मेरे कोई नेबर्स हैं भी या नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लस्टर बस पोर्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं. दिस इज इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन. गुड टू नो कि क्लस्टर बस पोर्ट क्या होता है एंड कैसे 2 नोड्स के बीच में इंटर कम्युनिकेशन होता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में डेटा शार्डिंग होती कैसे. तो फर्स्ट लेट्स गो बैक टू व्हाट इज शार्डिंग. शार्डिंग इज स्प्लिटिंग अप ऑफ डेटा. अगर कोई भी आपके पास डेटा है, ठीक है, आपके पास 1 GB डेटा है, 10 GB डेटा है, 100 GB डेटा है, आपको उसको डिवाइड करना है. इमेजिन करो इंस्टेंसेस जो हैं बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो आपको उनको जो है पर्टिकुलर बॉक्स में डालना है. नाउ हाउ डू यू डिवाइड दैट डेटा सो दैट आप एक एक बॉक्स में उनका डेटा डाल सको. एंड यू हैव टू पुट द डेटा इन सच अ वे कि आपको जब भी रिट्रीव करना हो तो आपको हर एक चेक नहीं करना पड़े. तो फर्स्ट चीज कि हम की रेंज के थ्रू करते हैं. तो की रेंज में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 10,000 यूजर्स हैं. ओके, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 2000 यूजर को जो है ए में डाल दोगे. ठीक है, उसके बाद 2001 से लेके जो है 5000 तक बी में डाल दोगे. एंड देन उसका 5001 से लेके 8000 सी में डाल दोगे. एंड देन बाकी के बचे हुए जो हैं वो चले जाएंगे डी में. ओके, तो ये एक तरीका है शार्ट करने का. अगर आप चाहें तो डोमेन या कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा यूज़र डेटा है तो वो जाएगा ए में, लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट डेटा है, ठीक है, तो वो जाएगा बी में, है ना. एंड लेट्स से कि अगर मेरे फोटोज़ का डेटा है तो वो जाएगा सी में. तो जैसे हम फोल्डर्स बनाते हैं, हम जैसे डेटा डिवाइड करते हैं जब हमें कुछ भी सेव करना रहता है अपने पीसीज में, अपने डिवाइसेस में, तो उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कैटेगरी. या फिर जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं कि ए से जो है सी तक एक उसमें रहेगा, डी से जे तक एक उसमें रहेगा, बाकी लेट से कि एक्स से जेड तक जो है डी उसमें रहेगा. तो हम जो है ऐसे रेंज के बेसिस पे भी, अल्फ़ाबेटिकल रेंज के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं. या फिर अगर आपका क्रॉस रीजन एप्लीकेशन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यूएस का जो डेटा है वो, मतलब ये जो रीजन है तो आप इसको रीजन वाइज कर सकते हो कि यूएस का डेटा नोड ए में रहेगा, अगर यूके का डेटा है तो बी में रहेगा, इंडिया का है तो सी में रहेगा. तो हम इस बेसिस पे भी कर सकते हैं शार्डिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज कि हम शार्डिंग कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आपने शार्डिंग तो कर दी, बट व्हाट इफ कि आपको ये एक नोड हटानी है
या फिर आपको जो है एक और इसमें जो है नोड ऐड करनी है। तो अब क्या होगा कि लेट्स से कि आपने जो है 1 से 1000 तक यहाँ किया है, 1000 से 2000 तक यहाँ किया है, ठीक है, 2000 से 3000 तक यहाँ किया है, 3000 से 4000 तक यहाँ किया है। नाउ अब आपको एक और जो है ऐड करना है नोड, ठीक है, बिकॉज किसी भी एक नोड में बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा था। तो व्हाट विल हैपन इज आपको अब जो है पहले इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डेटा निकालना पड़ेगा, इससे डेटा निकालना पड़ेगा, इससे डेटा निकालना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो है नए नोड के अंदर डालना पड़ेगा। नाउ जब आप ये डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा, आपके ये नोड्स काम नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, देयर आर मोर थिंग्स जो गलत हो सकती हैं इसमें। सो इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज अ वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम कॉल्ड एज कंसिस्टेंट हैशिंग। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शार्डिंग एल्गोरिथम। जो हमने जैसे बाकी तरीके देखे वैसे ही है। आई हैव रिटन अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन LinkedIn on consistent hashing, but I'll just give you a basic gist. Imagine we have server 1, 2, 3, 4 and server 5. Okay, and this is server 6. Okay, now let's say that we want to store a key. So what will happen? We will create a hash of this key. Now we will see if this hash is in the range of server 1 and 2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की है तो की 1 जो है वो है की 1 जो है वो सर्वर 1 से जस्ट पहले आ रही है। ओके, वो सर्वर 6 एंड सर्वर 1 के बीच में है। की 2 जो है सर्वर 1 एंड 2 के बीच में है। तो जिस भी दो नोड्स के बीच में की होगी हम जो है उसको उसके नेक्स्ट वाले नोड पे जाके स्टोर करेंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो हम हमेशा नेक्स्ट वाले नोड पे जाके स्टोर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सर्वर 1 एंड सर्वर 2 के बीच में की 2 का हैश आ रहा है तो हम इसको जो है नेक्स्ट वाले पे सेव करेंगे। सिमिलरली की 3 का जो है सर्वर 2 एंड 3 के बीच में आ रहा है तो हम सर्वर 3 पे जाके स्टोर करेंगे हमेशा नेक्स्ट वाले उस पे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक अ रिंग, एंड ये पूरा कंसिस्टेंट रहता है। बिकॉज लेट्स से कि आपका ये जो सर्वर 2 है ये आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो वॉट यू नीड टू डू इज कि सर्वर 1 जो है देन वो पॉइंट करने लग जाएगा सर्वर 2 पे, एंड जो भी सर्वर 2 की कीज थी वो चली जाएंगी सर्वर 3 पे। सो दिस इज हाउ दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ शार्डिंग द डेटा, डिवाइडिंग द डेटा। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेडिस क्या ये यूज करता है कंसिस्टेंट हैशिंग, एंड द आंसर इज नो। रेडिस कभी भी कंसिस्टेंट हैशिंग यूज नहीं करता है। इवन दो सच अ पॉपुलर एल्गोरिथम, सच अ ह्यूज यूज केस फॉर द एल्गोरिथम, रेडिस इसको यूज नहीं करता है। ओके, रेडिस की एक खुद की एल्गोरिथम है एंड रेडिस शार्ड्स डेटा बाय हैश स्लॉट्स। ओके, नाउ अभी हमने कंसिस्टेंट हैशिंग देखा तो ये क्यों नहीं कर रही? बिकॉज कंसिस्टेंट हैशिंग इज requires a lot of manual effort. आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते हो कंसिस्टेंट हैश, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। कंपेयर टू हैश स्लॉट्स आर वेरी इजी एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली। यू वोंट इवन नो दैट दीज आर हाउ दीज आर वर्किंग एंड दीज आर एक्चुअली स्टॉपिंग द डेटा, बिकॉज ये सारे के सारे नॉन ब्लॉकिंग होते हैं विच विल अंडरस्टैंड आगे। सो रेडिस शार्ड्स द डेटा बाय हैश स्लॉट्स। ओके, सो ये शार्डिंग का तरीका है। नाउ हैश स्लॉट्स क्या होते हैं? हैश स्लॉट्स, ओके, हैश स्लॉट्स आर नथिंग बट वर्चुअल पार्टीशंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैश स्लॉट्स एक्चुअली में कोई चीज़ होते नहीं है या फिर कोई एक्चुअल हार्डवेयर लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल स्लॉट्स हैं जो एक रेडिस के क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये क्लस्टर, ये जो हैश स्लॉट्स हैं जो अलग अलग इंस्टेंसेस पे रहते हैं, इनके बेसिस पे डेटा डिवाइड होता है, डेटा शार्ड होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ बिट ऑफ डिटेल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर में द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैश स्लॉट्स कुड बी 16384, 16384। इतने ही मैक्सिमम हैश स्लॉट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ
लेट्स एक्सप्लोर दिस। इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रेडिस का क्लस्टर है, ठीक है। इस रेडिस क्लस्टर में 3 नोड्स हैं, ठीक है। नाउ रिक्वेस्ट आती जा रही है एंड नाउ अब हमने बताया कि रिक्वेस्ट जो है यहाँ से हमारे पास आ रही है, ठीक है। वी विल सी कि इसका कैसा वॉक थ्रू रहता है, कि कैसे नोड्स तक पहुँचेंगी, कैसे स्टोर होंगी। अभी हमारे पास एक क्लस्टर है, क्लस्टर में नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है। नाउ इसमें जो है हमने बताया कि एक गिवन क्लस्टर में जो है 16,384 हैश स्लॉट्स होते हैं। नाउ इट डज नॉट मैटर कि कितने नोड्स हैं, 3 नोड हैं, 10 नोड हैं, 50 नोड हैं, 100 नोड हैं, नंबर ऑफ हैश स्लॉट्स हमेशा जो है 16384 ही रहेंगे इन अ गिवन क्लस्टर, इन अ सिंगल क्लस्टर। ओके, सो नाउ अब जैसे मेरे पास जो है ये सारे मेरे पास अवेलेबल हैश स्लॉट्स हैं, तो रेडिस क्या करेगा, इंटरनली इन्हें जितने नोड्स होंगे उतने में डिवाइड कर देगा। सो 0 से 5500 तक फर्स्ट नोड पे चले जाएंगे हैश स्लॉट्स, देन 5501 से 11,000 तक सेकंड पे चले जाएंगे, देन 11,001 से 16,383 तक जाएंगे, बिकॉज 0 से चालू किया था इससे 16,383 है टोटल जो है 16384 वो। ओके, सो नाउ अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि इसको डेटा को स्टोर कर दो, लेट्स से कि हमने बोला कि सेट वैल्यू, ठीक है, सेट वैल्यू करने के लिए हमने इसको बोला, तो रिक्वेस्ट आई सबसे पहले क्लाइंट के पास। ओके, नाउ ये जो क्लाइंट लेयर है ये रेडिस का क्लाइंट लेयर है, जो रेडिस CLI बोलते हैं हम, या फिर जो रेडिस के SDK होते हैं जो हम ऐप्स में यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी हमारे पास डेटा आता है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आता है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन से स्लॉट में जाएगा। ओके, एंड देन इन्हीं के पास जो है, जब इनके पास मैपिंग रहती है स्लॉट्स की, स्लॉट टू नोड, ओके, इनके पास मैपिंग रहती है स्लॉट टू नोड, एंड देन ये डिसाइड करते हैं कि कौन से नोड पे जाना है डेटा, एंड उस नोड पे वो भेज देते हैं। नाउ ये क्लाइंट लेयर किस बेसिस पे करती है डिसाइड, ओके, इसको समझते हैं। सो एक एल्गोरिदम होती है CRC16, दिस एल्गोरिदम डिटरमाइंस द हैश ऑफ अ की। सो ये रेडिस की इंटरनल एल्गोरिदम है कि CRC16 में जो है रेडिस की जो भी की होगी उसको भेजेंगे, उसका मॉड्यूलो करेंगे द नंबर ऑफ मैक्सिमम हैश स्लॉट्स, एंड ये हमें रिटर्न करेगा द स्लॉट ID। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा भेजा, ठीक है, मैंने बोला कि वैल्यू को जो है 10 सेट कर दो, ठीक है, मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया। अब क्लस्टर है तो ये कौन से नोड में जाके सेव करेगा, तो एक क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट इसको जो है वैल्यू को निकालेगा एंड मॉड्यूलो करेगा इसका। मान लो कि इसकी स्लॉट ID निकल के आई 3000, ठीक है। अब क्लाइंट को ये भी मालूम है कि 3000 जो है कौन से नोड के पास है, तो वो है नोड नंबर 1 के पास। ओके, तो वो जो है इसको नोड नंबर 1 में सेव कर देगा। जब हम गेट ऑपरेशन करेंगे तो वापस से वो ये चेक करेगा इसी व्यू पे कि की को जो है एल्गोरिदम में डालेगा एंड वापस चेक करेगा, इसको स्लॉट ID निकल के आएगी वापस से 3000, वो चेक करेगा कि 3000 जो है मेरे नोड A के पास है, एंड दिस इज हाउ द डेटा इज शार्टेड। ओके, सो एक्चुअली में कोई ऑर्केस्ट्रेटर नहीं होता है, जस्ट ये जो क्लाइंट है जब कनेक्ट होता है तब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, एंड इनफैक्ट यही पूरी इंफॉर्मेशन क्लस्टर के हर नोड के पास भी रहती है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 16,384 हैश स्लॉट्स है मेरे पास, बट व्हाट इफ मेरे क्लस्टर में एक ही नोड है, तो उसके पास कितने रहेंगे। सो अगर मेरे पास एक क्लस्टर है विद अ सिंगल नोड, तो देन सारे के सारे हैश स्लॉट्स जो हैं वो एक ही नोड पे पॉइंट करेंगे। सो अगर मेरा क्लस्टर ऑन है, लाइक क्लस्टर इज अ फीचर ऑफ अ रेडिस, इफ यू डोंट वांट इट यू डोंट हैव टू टर्न इट ऑन, बट अगर वो ऑन है तो देन सारे के सारे जितने भी मेरी स्लॉट्स निकल के आएंगे, मेरा डेटा वापस उस एल्गोरिदम के थ्रू जाएगा, उसको स्लॉट ID मिलेगी, स्लॉट ID मिलेगी, स्लॉट ID में सारे के सारे स्लॉट्स जो हैं नोड A को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके,
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई, बिकॉज दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ Redis clustering. Okay, let's move on. Now एक रेडिस, हमारे पास रेडिस क्लस्टर है. अभी हमने देखा था कि कंसिस्टेंट हैशिंग में बात करी थी कि नोड्स को लगाना निकालना बहुत आसान है. हमने बाकी में देखा था कि डिसएडवांटेज है. तो ये चीज़ अब हम रेडिस क्लस्टर में कैसे करेंगे कि लेट्स से कि मुझे एक नोड लगाना है. मेरे पास एक क्लस्टर है, उसके अंदर करेंटली 3 नोड्स हैं. ठीक है, अब मुझे जो है इसमें नोड 4 ऐड करना है. सो नाउ दिस बिकम्स अ बिट ऑफ ट्रिकी ऑपरेशन, बिकॉज रेडिस का जब भी हम क्लस्टर इनिशिएट करते हैं तब हमारे पास एक होलिस्टिक ओवरव्यू होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने क्लस्टर्स की नीड पड़ेगी. ओके, अगर हमने वो नहीं किया तो देन टू हम उसको रीपार्टीशन कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं. सो नाउ इन दिस केस हमें जो है नोड 4 ऐड करना है. तो व्हाट विल हैपन इज दैट ऑल ऑफ द A, B and C keys will move up some of the keys and go to node 4. By keys I mean slots. So currently there was 0 to 5500 slots. It will get reduced. So in node 1 it will go to 0 to 4095, then 4096 to 8191, and then so on, and then the so on. These will be now the total of 16384 hash slots will be divided into nodes of 4. But if this division is happening, rebalancing happening, then my Redis cluster will not work. No, that is not the case. Whenever new node is added or new node is removed through hash slots algorithm, then the Redis cluster does this internally and does not halt its operation. Okay, so Redis will keep on functioning at it is and it will happen in the background. Okay, but now let's say कि मुझे जो है node remove करना है. So if I want to remove the node, the same thing will happen that let's say that node 4 needs to be removed. So इसके जो slots हैं वो तीनों में distribute हो जाएंगे. इसमें चले जाएगा, इसमें चला जाएगा and then node 1 में चला जाएगा and वापस से हमारा cluster जो है वो 3 nodes का हो जाएगा and वो same partitioning रहेगी. ओके, सो जैसा मैंने बताया कि मूविंग हैश स्लॉट्स आर नॉन ब्लॉकिंग. हमने ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग को रेप्लिकेशन की वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा है. तो अगेन अगर आपको वो समझना है कि नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग क्या रहता है, यू कैन रिफर टू दैट वीडियो. अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन ब्लॉकिंग, इट इज़ बेसिकली कि द एंटायर नोड डज नॉट स्टॉप वर्किंग एंड द एंटायर रीबैलेंसिंग हैपेंस इन द background. Okay, now the important thing, one more important thing is how to store correlated data. Now let's say that we have a user that is 123, user with ID 123. We need to store name, age and role of the user. Now if we store in Redis, what will happen that this entire thing will go into the algorithm. Okay, C16, this will be the entire key and it will split us some slot ID and this slot ID will be connected to some nodes. Okay, so for our given example, let's say that we have 3 slots, X, Y and Z slots, and X and Y is refers to node 1 and the slot Z refers to node 2. Now when I try to get the slot ID of these, I get different slot IDs for each key. Now these two data will be kept in node 1. This will be kept node 2. But I don't want that. I want that since it's a data for all the same users, all the same user, name, age and role, I want to keep it in a single node or this node. Why do I need to keep it in multiple nodes? Okay, so now here comes the concept of hashtags. So what hashtags essentially does is, hashtags are nothing but just curly braces around the key part of your key, basically important part of your key. So for example, I want to manipulate the Redis to store all the keys for user 123 in a single node. So I will put curly parentheses in all my keys. Now it will only
point these to a single slot, that is slot Z. Now slot Z is connected to node 2 and all my data now will be connected to node 2. Okay, so CRC16 now, because this happened because now instead of this but entire key, it will only take this part of the key, the one that we put in curly braces. Now this remains the same and will give us always the same slot ID, that is slot Z. This is how we can manipulate Redis to store our related data into a single node instead of distributing it among X number of nodes. Okay. Now let's move on to the main advantage of Redis replication and Redis clustering, that is replication in Redis cluster. हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखा था कि रेडिस रेप्लिकेशन ज़रूरी है, बट अभी क्या होगा कि लेट्स से कि अगर आपके पास क्लाइंट है एंड वो जो है 3 इंस्टेंसेस से कनेक्टेड है, लेकिन अगर उसमें से एक भी इंस्टेंस डाउन हो गया तो मेरा डेटा लॉस तो है ही। मुझे एडवांटेज क्या रहा, मेरा बिजनेस लॉस तो हो ही चुका है, मेरा डेटा लॉस हो चुका है, मेरे ऑपरेशंस हॉल्ट हो रहे हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट, लाइक रेप्लिकेशन ने आपको एक तरह की सिक्योरिटी दी, बट रेप्लिकेशन जो है वो सिंगल मास्टर स्लेव पे रेप्लिका पे काम कर रहा था, एंड जो क्लस्टरिंग है वो सेम उसको जो है सिंगल इंस्टेंसेस पे डिवाइड कर रहा है। सो हम जो है रेडिस क्लस्टर्स के अंदर रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हर एक एक नोड जो क्लस्टर का पार्ट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मास्टर नोड, मास्टर ए, मास्टर बी एंड मास्टर सी। नाउ एक एक नोड जो है एक सेपरेट इंस्टेंस, ये रेप्लिका रहेगी मास्टर नोड की, जो हमने कल बहुत डिटेल में समझा। सो आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हो, वी लर्न दिस इन वेरी डिटेल। सो रेप्लिका ए जो है मास्टर ए का को रेफर करेगी, रेप्लिका बी मास्टर बी को, रेप्लिका सी मास्टर सी को। सो अगर लेट्स से कि मास्टर ए डाउन जाता है या फिर मास्टर सी डाउन जाता है, तो क्या होगा कि रेप्लिका ए जो है विल बिकम न्यू मास्टर, रेप्लिका सी विल बिकम न्यू मास्टर। नाउ दिस वे हमारे कभी भी क्लाइंट के कॉल्स जो है बंद नहीं होंगे। नाउ ये दोनों मास्टर बन जाएंगे। आप इस पे जो है रेप्लिका लगा दो RA1, इस पे लगा दो रेप्लिका RC1। सो कभी भी मेरे खत्म नहीं होंगे। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेप्लिकेशन इन रेडिस क्लस्टर की हाउ योर डेटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम 2 वेज, कि अब मेरा डेटा शार्डेड भी रहा है जिससे किसी एक सिंगल इंस्टेंस से नहीं चला जाए, मेरी सिंगल इंस्टेंस पे लोड नहीं पड़े, बट अगर मेरी एक सिंगल इंस्टेंस है तो वो भी कैसे रेप्लिकेट होती जा रही है। एंड दिस इज द मेन एसेंस ऑफ रेडिस की हाउ इट डिलीवर्स इन स्पीड एंड इन अवेलेबिलिटी, कि हाई अवेलेबल सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं हम रेडिस के साथ। नाउ ये जो रेडिस है, ओके, नाउ रेडिस की क्लस्टर है, ये स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी हमें नहीं देती है। सो कल हमने समझा था कि रेडिस का जो रेप्लिकेशन होता है वो सिंक रेप्लिकेशन होता है, एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है। सो अब जब सिंक्रोनस रेप्लिकेशन एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है तो क्या हो सकता है कि मेरे पास लेट्स से कि 3 रिक्वेस्ट आई, ओके, मास्टर 1 पे आई मेरे पास 3 रिक्वेस्ट। अब ये जो है मैं तुरंत ही जैसे मास्टर 1 ने इसको किया कंप्लीट, मास्टर 1 ने तीनों की तीनों रिक्वेस्ट को भेज दिया, एंड देन बाद में जो है रेप्लिका को वो तीनों चीज़ें सिंक करता है। बट व्हाट इफ कि जैसे ही मेरी 3rd रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई मेरा मास्टर डाइज हो जाए, तो कभी भी रेप्लिका ए के पास पहुंचेगा ही नहीं डेटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ओके, तो हम सिंक्रोनस कर सकते हैं। ओके, सिंक्रोनस ट्राई करते हैं। तो मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट दी, मास्टर के पास रिक्वेस्ट आई, मास्टर ने प्रोसेस करी उसको, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, उसने रेप्लिका को डेटा भेजा, रेप्लिका ने प्रोसेस कर ली, रेप्लिका ने बोला कि मेरे पास डेटा है, उसके बाद उसने क्लाइंट को भेजा। गुड, ये काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है। अगर मेरे पास ए में डेटा है तो मेरे पास रेप्लिका में डेटा है, मास्टर में डेटा है तो रेप्लिका में डेटा है। बट व्हाट इफ मेरे पास ए में आया, ठीक है, अब हमने समझा था कि ये जो है रेप्लिकेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हो। तो ये मेरे पास ए में आया डेटा, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जो है बी तक गया है, लेकिन ये जब तक हुआ ही नहीं है मेरा इंस्टेंस डाउन हो गया, या फिर ये इंस्टेंस डाउन हो गया। नाउ इन दैट केस
कंसिस्टेंसी डिड नॉट परसिस्ट, यहाँ पे कंसिस्टेंसी चली गई। ये बहुत रेयर केस है कि सिंक्रोनस में हो, बट इट कैन स्टिल हैपन। सो Redis Redis cluster never guarantees strong consistency. Okay, it can give you strong consistency, but in an event of failures, it might not, even though you are using sync replication or async replication. Now, if you use sync replication, you will get pretty good consistency. I have never seen in any of the production cases myself where I have not received strong consistency. Even though not guaranteed, I did not see any cases where I did not get that consistency. But if we use sync, then performance goes down, just down, because you are not relying on speed anymore, you are relying on consistency. And if you want performance, then you have to use the async, which will not give you strong consistency. So this is the trade-off that Redis cluster has, and as developers हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा कि टू डिसाइड कि हमें या तो परफॉर्मेंस चाहिए है या तो हमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए है। एंड इन मोस्ट ऑफ द यूज केसेस जहाँ पे हम Redis यूज करते हैं, वी डू इट फॉर द परफॉर्मेंस गेन्स, नॉट फॉर द कंसिस्टेंसी। फॉर कंसिस्टेंसी वी गो फॉर परसिस्टेंट स्टोरेज, जो हमारे पास DynamoDBs हैं, हमारे पास RDS हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं, तो हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन Redis for strong consistency. Okay, so this was it about Redis consistency. And ये वीडियो भी 40 मिनट्स की हो गई है. I thought कि this will be 15 to 20 minutes, but I have fairly underestimated the content on Redis clustering. So I really hope that you like the video and you learned something new about clustering and Redis. And if you like it, please do like the video, subscribe the video, and comment down on what else do you want to watch. And okay, see you in the next video. Bye bye.